students. Today I'm going to start video lecture for the lesson number 4, that is atoms and molecule of grade 9. So in this chapter we are going to study about in detail structure of the atom, topics to be covered, what we are going to learn actually, Dalton's atomic theory and its drawback, discovery of electron, proton, neutron, Thomson's model of atom, Rutherford's model of atom, Bohr's model of an atom, atomic number, mass number, then valence electron, valence shell, valency, isotopes, isobars, then isotones, some tricky questions with solution. So these all things I'm going to recover in 2 or 3 video lectures. So it will easy to you. At a time, if you will see one video, your concept will clear, and after that, whenever you will get time, you can go through this second and third video. So let us begin. First of all, I would like to ask you a question, students. What is meant by matter? In first chapter already you have studied about matter is the matter actually anything which occupies which occupies space and has some mass. कुछ मास होता है एंड वो जगह ऑक्यूपाई करता है, कुछ जगह ले लेता है हमारे सराउंडिंग में. मीन्स ऑल द थिंग्स वॉट एवर, जैसे हम रिवर ले लेंगे, बुक्स, टेक्स्ट बुक, पेन, चेयर, टेबल, वेसल्स, किचन का बर्नर, एलपीजी गैस, देन योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बुक्स आई सेड. So these all things, they are matter. Why they are matter? Because they are having their mass and they occupies space. Now this was random, this is matter. Now according to chemistry, okay, this all matter was concluded to be made up of small particles called atom or parmanu. Earlier this atom was described as parmanu, and later on this term is transformed into atom. We started calling it atom. So 3-4 scientists has given this theory. This means 3-4 theories given by these scientists one by one, and just like Dalton has given his theory. After that, Thomson has put his efforts. Then Bohr has put his theory. Just like this. So first theory is given by Dalton, and he introduced the term atom. Okay. Before that, it is denoted as, or it is called as parmanu. So the structure of atom you can see on your screen. How complicated it is actually, students. When we are going to study it in detail, you will come to know how actually it is built up and lots of things. So all matter was concluded to be made up of small particles called atom. तो हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि कोई भी मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल से वो बना हुआ है. You can resemble it with our body. हम क्या बोलते हैं? Our body is made up of cells. The fundamental unit of this living things are cell. तो जो सेम फंक्शन जिनका होता है सेल, दे आर मेकिंग टिश्यूज एंड वो टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एटम, तो इट वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन. डाल्टन इन ईयर 1803 as Dalton's atomic theory. Dalton was great scientist, because in that century, 18th century, we could not imagine. One scientist came with this theory, he came with his postulates, okay, and he has given this atomic theory, and he has introduced the concept atom. Atom जो concept है वो introduce किया.
Apart from this, I would like to tell you students, our Rishi Muni has discovered these things very earlier. Okay, whatever Vedas, Upanishads, it includes all these things, but it is not in this way. They have not given this knowledge to everyone. It was in हमारे वेदों में है. Then वो जो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्चर जो है वो it was limited to them only, so it was not introduced to world. But Dalton has introduced this theory, and he has put this theory just he has put his theory, and he told everyone actually, है ना, उसने सबके सामने he put his theory and he introduced this concept as atom. So we will discuss about what he has given us postulates in the form of postulates, how he has introduced this theory. So according to Dalton, all matter is made up of small particles called atoms. सभी whatever matter, हम matter किसे बोलते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड इट हैज मास. तो ऐसा जो भी कुछ है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल, छोटे बहुत छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, एंड जिसे हम वो स्मॉल पार्टिकल जो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, उस दैट इज ही हैज इंट्रोड्यूस इट एज अ एटम. Particles called atoms. Atom is invisible and indivisible. So first atom introduce किया, smallest particle of matter, and second thing about this atom is invisible. We cannot see these atoms with our naked eyes. हम हमारे open eyes से उसको नहीं देख सकते हैं, because it is invisible. Though it is made up of atom, but these atoms are invisible. हम नहीं देख सकते हैं. And second thing, it is indivisible. We cannot break it in small pieces. इससे भी ज़्यादा small pieces में we cannot break it. So this was the second postulate of this Dalton. Then further he added, atoms can neither be created nor destroyed. We cannot make atom and we cannot destroy it in any reaction or in any case. हम ये जो atoms है, इसको ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम इसको destroy कर सकते हैं. This was the third postulate given by Dalton. Then atoms of an element are alike in all aspects. So according to Dalton, matter is made up of small particles. That small particles are called as atoms. And when we are talking about this atom, suppose I'm taking example of so I'm taking example, हमने एक example लिया कि जैसे atoms of an element are alike in all aspect. Actually I was taking brush. So तो हाइड्रोजन इज ओके, एलिमेंट है, हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन का एटम अगर मैंने कंसिडर किया, इफ आई कंसिडर हाइड्रोजन एटम, सो वॉट एवर हाइड्रोजन एटम्स जो है, सभी जो एटम्स है, जो बहुत छोटे छोटे एटम्स है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, दैट ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल. दिस वॉज द एजम्पशन ऑफ डाल्टन. डाल्टन का एजम्पशन था, पोस्टुलेट था कि वॉट एवर द एटम्स जो आइडेंटिकल है, हाइड्रोजन के है, तो ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम है, एक जैसी है. देर इज नो एनी डिफरेंस. वो जो एटम्स है एक एलिमेंट का, तो उसका देर इज नो एनी स्मॉल डिफरेंस भी नहीं है, दैट ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल. दिस वॉज द नेक्स्ट पोस्टुलेट्स गिवन बाय डाल्टन. नाउ what was Dalton introduced? Dalton ने क्या बोला? First of all, smallest particle is atom. Atoms are invisible and indivisible. नहीं देख सकते, उसको break भी नहीं कर सकते हैं. Then third was he said that कि atoms cannot be created nor be destroyed. हम atoms बना भी नहीं सकते, हम उसको destroy भी नहीं कर सकते हैं. Atoms of an element, एक element का atom है, किसी भी एक specific element का atom है, that all elements are identical, similar.
same, actually same. There is no any difference between the any atom of any element. किसी भी element का, एक particular element का अगर हमने atom लिया है तो उसमें कोई भी changes नहीं रहेगा. This was a Dalton's theory. Now we will move towards the drawbacks of this Dalton's theory. Dalton has introduced in 1803. He was the first scientist. He has introduced term atom. He coined this term. Now this postulates has some drawbacks. So we will talk about this. According to Dalton, atom is indivisible. Atom जो term है given by Dalton, and according to Dalton, atom is indivisible, but later on it was proved that atom can be subdivided into subatomic particles. अकॉर्डिंग टू डाल्टन ऐसा था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज एटम, एंड दिस एटम इज इंडिविजिबल. बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सम टाइम इट इज प्रूव्ड दैट दिस एटम्स कैन डिवाइडेड इनटू, वो छोटे छोटे 35 पार्टिकल्स में वी कैन डिवाइड इट, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 35 पार्ट्स में. ये बिल्कुल छोटा जो एटम है दैट वन ऑल्सो वी कैन ब्रेक इट, वी कैन डिवाइड इट इन 35 पार्टिकल्स. एंड द बेसिक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है दैट एटम कैन बी सब डिवाइडेड, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. एंड दैट बेसिक और फंडामेंटल सब पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो दिस वॉज द फर्स्ट ड्रॉबैक. जो डाल्टन का जो पॉस्टुलेट है वो क्या करता है यहाँ पे, इट इज फेल टू एक्सप्लेन हाउ दिस एटम इज ब्रेक इनटू 35 पार्टिकल्स एंड इट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. Then second drawback, atoms of same element can somehow differ from each other. Actually practically it is proved that atom of same element कोई भी हमने, suppose I have taken example of sodium, मैंने sodium is a element, उसका मैंने example ले लिया. तो सोडियम के ऑल द एटम्स, जिस एटम से ये सोडियम एलिमेंट बना है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल all the atoms are identical. Somehow there would be difference. जैसे H2O मॉलिक्यूल है ना, H2O है, हम उसको क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं. हाइड्रोजन इज ऑल्सो हाइड्रोजन से ये बना हुआ है. तो हाइड्रोजन का क्या आता है, जिसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, ट्रिशियम बोलते हैं. तो ऐसे उसके क्या है, जिनका एटम्स जो है दैट एटम्स आर डिफरेंट, little bit difference is there, but it is there. So that postulate also failed to explain how this is. क्यों है, because ये हो रहा है. So all these drawbacks led to failure of Dalton's theory of atom. So Dalton's contribution was huge. He enhanced that studies of this atoms, molecules. Actually he has introduced and he has enhanced the curiosity of people in chemistry, but some postulates were not able to explain this explanation. So these were the drawback of Dalton's theory. Now after knowing about the atom, different attempts were made to know about its structure. So electron, proton and neutron सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. So three fundamental subatomic particles are electron, which are negatively charged. You have to always keep in your mind, electron means negatively charged particles, proton means positively charged particle, and neutron means neutral. It doesn't carry any charge but it has mass. But उसको mass होता है but it don't have any charge. When we are talking about atom also don't have any charge, because the same number of protons and electrons are present in atom. That's why the positive charge is neutralized by this negative charge and atom is neutral. Okay, now we will discuss about the next topic, that is discovery of electron. How this discovery of electron was taken place, है ना, कैसे हुआ ये. It was discovered by J.J. Thomson. J.J. Thomson was also very brilliant scientist, you know. So he took
क्रुक्स ट्यूब, उन्होंने क्या किया, क्रुक्स ट्यूब ली दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास से बनी हुई क्रुक्स ट्यूब, क्रुक्स दैट साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड, उन्होंने ये क्रुक्स ट्यूब बनाई एंड अरेंज्ड apparatus as shown in figure। एंड उन्होंने जो इसमें दिया हुआ है, जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेक, मैं इसको लेने की कोशिश कर रही हूँ, ये क्यों नहीं आ रहा है ब्रश, आई एम नॉट एबल टू टेक दिस ब्रश, it is not possible to take. Okay, so we were talking about the J.J. Thomson. He has discovered electron. Electron is nothing but negatively charged particles. And this how it was done. तो थॉमसन, दिस J.J. Thomson has taken Crookes tube, जो it is displayed in on your screen, वो जो है हॉरिजॉन्टल है, दैट इज ये है क्रूक्स ट्यूब है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास एंड इट्स उसका लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर लेंथ, उसके साइड में टू इलेक्ट्रोड्स आर गिवन दैट इज मेड अप ऑफ मेटल, वो मेटल से बने हुए 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ओके, एंड इट इज वायर के थ्रू दे आर जॉइन विथ बैटरी, बैटरी के साथ वो ज्वाइन हुए हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आई वॉन्ट टू जूम इट, ओके, हम इसको जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये जो है नीचे जो प्लस माइनस चार्ज दिया हुआ है, एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स, कैथोड लिखा हुआ है, वेर एवर कैथोड लिखा हुआ है वो क्या है, दैट इलेक्ट्रोड, वो क्या है, इलेक्ट्रोड है, एंड दिस इज निगेटिवली चार्ज्ड, कैथोड जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, एनोड राइट साइड में जो है एनोड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, ये जो इस साइड में है निगेटिवली चार्ज दैट इज कैथोड, एंड ये जो ट्यूब है 60 सेंटीमीटर की है, ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, इसमें एनी गैस यू कैन यूज, हम इसमें गैस यूज करेंगे, ही हैज़ यूज, एक्चुअली थॉमसन हैज़ यूज, एंड मेटल से बने हुए इलेक्ट्रोड है, आई होप यू अंडरस्टूड, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के लिए जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, बैटरी के साथ अटैच था, व्हेन ही पास्ड इलेक्ट्रिक करंट, अब क्या किया, ये अरेंजमेंट तो हो गई, ग्लास ट्यूब ले लिया, उसके अंदर गैस उन्होंने फिल कर दिया, फिर इलेक्ट्रोड, देन वायर, इट इज अटैच्ड विथ बैटरी, सब एवरीथिंग इज डन, नेगेटिवली चार्ज जो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसे हम एनोड बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, बट द पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम कैथोड बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनायंस बोलते हैं। नाउ कैटायन एंड एनायन, 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। When he passed electric current at high voltage is very high, जैसे 10,000 जितना वोल्टेज उसने अप्लाई किया थ्रू अ गैस एट प्रेशर एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नथिंग वॉज हैपन, सो एट हाई वोल्टेज कितना किया, वोल्टेज कितना था 10,000 जैसे वोल्टेज उसने अप्लाई किया, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नथिंग वॉज हैपन। व्हेन ही रिड्यूस्ड द प्रेशर, ये थॉमसन ने व्हेन ही हैज रिड्यूस्ड प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेयर से उसने 10⁻² एटमॉस्फेयर ऐसा प्रेशर रिड्यूस किया, द होल ट्यूब स्टार्टेड ग्लोइंग ग्रीन, ये जो ग्लास से बनी हुई ट्यूब है इट स्टार्टेड ग्लोइंग ग्रीन। What happened when the voltage was high but pressure was normal 1 atmosphere, nothing was happen over there, that glass tube is filled with gas, any gas he has taken, and when he has reduced pressure and voltage 10,000 जैसा voltage उसने रखा, so that time वो जो glass tube है it started glowing green। he further, फिर आगे उसने क्या किया, he further reduced the pressure at 10⁻⁴ atmosphere, 10⁻² atmosphere से 10⁻⁴ atmosphere he has reduced pressure more, the whole tube stopped glowing। now what happened, voltage was same, pressure was he has decreased pressure more pressure, जैसे कितना 10⁻² से 10⁻⁴ तक उसने प्रेशर रिड्यूस किया, तो the whole tube was glowing green color, it was stopped, but the faint green was still seen at anode end, and जो रेड कलर का सर्कल किया हुआ है that is anode है,
वो क्या है, एनोड है। एंड वहां पे क्या हुआ, स्टिल सीन एट एनोड इन फेंट ग्रीन वॉज, वो कलर है दैट इज वो ग्लो कर रहा था वहां पे। वो जो एनोड के साइड में है ना, एनोड के साइड में एक जिंक सल्फेट का क्या किया है, कोटिंग किया हुआ है। To confirm, a fluorescent screen placed at the back of anode and anode was made परफोरेटेड। तो एनोड के बैक साइड में, एनोड जो दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज जहां पे दिखाई दे रहा है दैट इज एनोड, वो एनोड है। एनोड के बैक साइड में ऐसे ये कलर का क्या किया है, परफोरेटेड मटेरियल प्लेस्ड ओवर देयर, है ना। परफोरेटेड जो क्या करेगा, जिंक सल्फाइड उसने किया, जिंक सल्फाइड से उसने वो परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड मीन्स व्हेन दिस मटेरियल गेट एनर्जी, तो वो जो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं दे गेट काइनेटिक एनर्जी, एंड वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते, काइनेटिक एनर्जी, दे आर रिलीजिंग एनर्जी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफोरेटेड केमिकल। जो केमिकल परफोरेटेड होता है वो क्या करता है, व्हेन इट गेट्स काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मिलती है तो वो उसके अंदर से इट इमिट्स लाइट। ओके, सो the zinc sulfide screen started glowing which confirmed the flowing fact। तो उससे, उसमें से हमें क्या पता चलता है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। कंक्लूजन, तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि ये जो कैथोड जो है ना, कैथोड से रेज निकल रहे हैं। कैथोड इज निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड है। एंड यहां से जो निकलते हैं रेज निकलते हैं, दे रेज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। मीन्स वो खुद क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, एंड दे आर इलेक्ट्रॉन्स एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। वोल्टेज 10,000 वोल्ट जितना वोल्टेज है, एंड प्रेशर कितना है, प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट डन बाय थॉमसन। So when electric current was passed through gas at low pressure and at high voltage, some rays were emitted through cathode. So cathode में से some rays were emitted and were traveling towards anode called cathode rays. उसे ही cathode rays कहते हैं, जो कैथोड से निकले and they traveling towards the anode. Anode is positively charged. So you know that two opposite जो चार्जेस है दे अट्रैक्ट इच अदर। एनोड पॉजिटिव है तो जो भी रेज आए हैं डेफिनेटली वो क्या है, दे आर निगेटिवली चार्ज। So they are traveling towards positively charged, means they are negatively charged traveling towards anode called cathode, जिसे उन्होंने क्या टर्म दिया, cathode rays consisting of negatively charged particles called electrons। इसे ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। सो दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अब तक हमने क्या पढ़ा, कैथोड रेज से जो रेज निकले थे दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। सो दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे जे थॉमसन हैज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय E. Goldstein. E. Goldstein, volunteer scientist, great man. He has discovered proton. It was actually discovered while carrying out experiment to produce cathode rays. It was done when the cathode rays was produced. What is cathode rays? Cathode rays are nothing but electron. Cathode rays क्या है? Nothing but electron, because they are negatively charged particle. When J.J. Thomson has introduced this electron term and उन्होंने discover किया है इलेक्ट्रॉन को, in the same experiment was same, but it was this protons was discovered by E. Goldstein. The apparatus used is same. उन्होंने same apparatus use किया है, जैसे glass tube 60 सेंटीमीटर का, उनसे in that glass tube 2 electrodes, metal electrodes were used, wire, then battery, negative terminal, positive terminal, and all that stuff was same. So it was the apparatus used in same. It was seen that when cathode rays were produced and they traveled through gas in discharge tube, while doing so they ionized the gas. तो ये गैस में से गैस वॉज फिल्ड किया हुआ है वो ट्यूब में। तो व्हेन दिस कैथोड रेज
है ना, कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, दे प्रोड्यूस्ड एंड दे ट्रैवल्ड थ्रू गैस, गैस में से जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अब उनको एनर्जी मिल गई, दैट्स वाई दे आर मूविंग, ट्रैवलिंग। सो वाइल ट्रैवलिंग क्या करेंगे, वो ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो डिस्चार्ज हो ही जाएंगे, उनके पास जो एनर्जी है, तो व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद, किसी और के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू कोलिजन, है ना, कोलिजन होता है, इसकी वजह से वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। दे आर गिविंग दिस एनर्जी टू गैस पार्टिकल एंड दैट गैस पार्टिकल को एनर्जी मिल गई तो वहां पे आयोनाइजेशन हो गया। Clear students, ionization. They ionized the gas. That is, they took electrons of gas. एंड जब उनका आयोनाइजेशन हो गया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गैस के, लिविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन तो चले गए, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कैथोड रेज ने गैस को भी आयोनाइज किया, गैस में से भी ही इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ दे हैव स्टार्टेड मूविंग चार्ज ऑफ गैस। दिस पार्टिकल्स फॉर्म्ड कैनल रेज एंड स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द कैथोड। जो कैथोड रेज ट्रैवल कर रहे थे, दे हैव आयोनाइज्ड गैस, गैस को उन्होंने आयोनाइजेशन कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज उनका भी निगेटिवली चार्ज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, वो कहाँ पे, एनोड पे अट्रैक्ट होके वो एनोड पे चला गया। अब जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस दे लेफ्ट इन दैट ट्यूब, गैस में से जो पॉजिटिवली चार्ज बचे हैं, दे हैव स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द, वो कहाँ पे स्टार्ट होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना, निगेटिवली चार्ज क्या है, कैथोड है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है। पार्टिकल्स possess positive charge, so they were named protons and उन्हीं को protons कहा गया। I hope students you understood, same experiment was there, कैथोड रेज में से इलेक्ट्रॉन्स निकले, उन्होंने गैस को आयोनाइज कर दिया, गैस को आयोनाइज करने के बाद पॉजिटिवली चार्ज गैस पार्टिकल्स दे स्टार्ट मूविंग, वो लेफ्ट में मूव होना स्टार्ट हो गए, बिकॉज लेफ्ट में कैथोड वॉज प्रेजेंट विच इज निगेटिवली चार्ज, वो है, तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ वो चले गए। क्यों चले गए, बिकॉज वो खुद क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, उनको क्या टर्म दे दिया, प्रोटॉन्स। अब एंड इलेक्ट्रॉन्स वॉज अर्लियर डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, जो निगेटिवली चार्ज थे, जो एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। नाउ दिस वॉज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। Now Thomson's model of an atom. Now we will discuss about Thomson. Thomson has put one model and that is called as atom. So we are talking about J.J. Thomson, है ना? According to Thomson, atom is positively charged sphere in which electrons are present at certain places like plums in a pudding. So Thomson का मॉडल क्या था? टिल टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, हमने डेल्टन थ्योरी डिस्कस किया है, जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट वी हैव सीन, इवन हमने स्मिथ का भी देखा एक्सपेरिमेंट, ही हैज़ डिस्कवर्ड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड थॉमसन, एंड थॉमसन हैज़ गिवन अस वन थियरी, हमें उन्होंने एक मॉडल ऑफ एन एटम दे दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक प्लम पुडिंग मॉडल है वो दैट इज रिजेंबल विद। सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या है, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। Actually, atom is neutral, but according to Thomson, अब तक थॉमसन को ये पता नहीं है, तो थॉमसन्स फर्स्ट पोस्टुलेट इज टेलिंग अस कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहीं कहीं मूवमेंट कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट गिवन बाय थॉमसन। He actually compared the model with watermelon or raisins in ice cream. आइसक्रीम में जैसे रेजिन्स होते हैं, आइसक्रीम का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, रेजिन्स का क्वांटिटी कम होता है। सो ही हैज़ कंसिडर्ड एज कि आइसक्रीम में जैसे रेजिन्स है वैसे इलेक्ट्रॉन are present in atom and rest of atom is positively charged sphere, or you can resemble it with watermelon। अब watermelon कट किया हमने एंड इसमें उसके सीड्स होती है, ब्लैक सीड्स आर प्रेजेंट, तो उनकी क्वांटिटी कम होती है, वो पल्प जो होता है इट हैज़ हाई क्वांटिटी, है ना, ज़्यादा क्वांटिटी उसकी होती है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी ही हैज़ कंसिडर्ड एज अ एटम जिसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज है, एंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सीड्स का जो क्वांटिटी होता है वाटरमेलन में उसको उसने कंसिडर किया एज अ इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस थॉमसन का जो मॉडल था इट वॉज ऑल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन एक्चुअली, है ना, ये लिंक में एक्सपेरिमेंट होते गए एंड एक्सपेरिमेंट से दे लर्न
कि उन्होंने कुछ दे अंडरस्टैंड, दे केम टू नो एंड दे पुट द पोस्टुलेट्स. सो उनके बाद आफ्टर दिस दैट साइंटिस्ट और फर्दर ऑन सम न्यू साइंटिस्ट केम एंड ही हैज स्टार्टेड हिज स्टडीज. तो ये बैकग्राउंड का नॉलेज था, तो दूसरे वाले जो साइंटिस्ट थे तो उनको डिस्कवरी अच्छा मिला. So this Thomson's model has also drawback. It could not explain the distribution of charges and stability of atom. So because Thomson was telling कि atom is positively charged sphere, but if it is positively charged sphere, how could it is stable? वो stable कैसे रह सकता है? That is not explained by Thomson. So this was the drawback of Thomson model. Now we will move towards next scientist, that is Rutherford's scattering experiment. In order to understand the structure of atom, Rutherford performed the experiment as a scattering experiment. So what Rutherford has done, so to explain how exactly the atom he has taken, उन्होंने क्या किया, he took gold foil, सोने की बनी हुई बहुत थिन फॉइल उन्होंने ली, दैट इज मेड अप ऑफ गोल्ड, एंड पास्ड अल्फा रेज थ्रू. एंड इसमें से उन्होंने क्या पास किया, अल्फा रेज पास किए थ्रू इट. अल्फा रेज आर, व्हाट इज अल्फा रेज? अल्फा रेज आर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज. अल्फा रेज क्या होते हैं? अल्फा रेज, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज. वो उन्होंने किस में से पास किए? गोल्ड की बनी हुई थिन फॉइल से उन्होंने पास किया, कंसिस्टिंग ऑफ हेलियम न्यूक्लियस. दिस alpha, what is alpha rays are actually positively charged rays consisting of helium nucleus. So helium nucleus में से जो rays निकलते हैं, जिसे उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा rays बोलते हैं. They are positively charged. The apparatus was as shown in figure. You can see on your screen it is displayed. Helium, you know that helium क्या है? Noble gas है. It has atomic number 2 and mass number 4. Observation. So what observation he made? Some rays passed straight. पॉजिटिवली चार्ज आयंस जब पास किए वो गोल्ड के फॉइल में से, तो क्या हुआ? सम रेज पास, कुछ रेज स्ट्रेट पास हो गए. सम रेज वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स. कुछ रेज ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे होके ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए लार्ज एंगल से, है ना, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए. सम रेज रीबाउंडेड. सम रेज क्या हो गए? वहां जाके फिर से रिटर्न आ गए. रीबाउंडेड मीन्स रिफ्लेक्टेड बैक. ओके. Conclusion. So what conclusion he has made? Most of the space in atom is empty. So what Rutherford is telling us with the help of this scattering experiment, उनका ऐसा कहना है कि जो स्ट्रेटली ये गए हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स गए हैं गोल्ड फॉइल में से, मीन्स मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है एटम की वो क्या है? एम्प्टी है. क्लियर? बिकॉज अगर रेज उसमें से पास हो गए तो एटम का स्पेस तो क्या है? एम्प्टी है. दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल कि वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हो गए. देयर इज समथिंग इन सेंटर. बिल्कुल सेंटर में कुछ है. समथिंग इज देयर इन सेंटर ऑफ एन एटम called nucleus. So he has given that term, उसे उन्होंने न्यूक्लियस बोला, बिकॉज कुछ रेज ऐसे हुए थे, सम रेज व्हेन ही रेज तो पास ही किए, बट सम रेज क्या हो गए? डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल. तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है एंड बहुत कम रेज लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, मीन्स सेंटर में कुछ है, दैट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है. So according to Rutherford's structure of an atom, it is similar to solar system. So Rutherford का क्या कहना है? ये जो एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है, इट इज जस्ट लाइक सोलार सिस्टम. यू नो, यू स्टूडेंट्स हैव स्टडीड, है ना, आपने जियोग्राफी में लास्ट ईयर इन 8th क्लास ऑल्सो स्टार्स एंड सोलार सिस्टम में यू हैव स्टडीड अबाउट द सोलार सिस्टम. सोलार सिस्टम के बारे में यू हैव लर्नड ऑलरेडी. सन इज इन द सेंटर. सन सेंटर में होता है एंड उसके बाद क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग. प्लैनेट्स है, फिर वो कैसे आएंगे? जैसे विनस है, अर्थ है, जुपिटर है, मार्स है,
तो ये जो प्लैनेट्स है दे हैव देयर ओन पाथ, उनका पाथ है एंड वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन. He said atom is electrically neutral. So finally this genius man, this intelligent man has given us postulate, and that is means till time we believe that an atom is electrically neutral, and this observation, this statement is given by Rutherford, and he is telling that atom is electrically neutral. Outside the nucleus, electrons revolve like planets revolve around the sun. Nucleus is absolutely in center of the atom. Nucleus is absolutely in the center of the atom, and electrons are revolving around this nucleus just like planets are revolving around the sun. Protons are positively charged particles, electrons are negatively charged particles, and neutrons are don't have any charge, they are neutral. Neutrons no charge means they are neutral. This postulates are given by Rutherford. Rutherford is telling us that outside the nucleus के outside में electrons revolve like planets revolve around the sun. The same thing I have taken. Now this Rutherford's model has also drawbacks, students. So students, you might be think that madam, how many theories you are telling us and how many drawbacks you are telling us, and what is the reason behind this, why you are telling us this. So students, what is the reason behind this? How many efforts these scientists have done for discovery of this atom. It is not पॉसिबल ओवरनाइट ये डिस्कवरी नहीं हुई है मेरे प्यारे बच्चों. तो इसके लिए जैसे कितना ओवर टाइम पीरियड जो आप बोलोगे तो 100 से 100 ईयर्स ऐसा इतना टाइम लगता है. सो इट इज़ परफेक्टली, इट इज़ नॉट डन. ऐसे नहीं कि किसी एक पर्सन ने 100 ईयर ये स्टडी किया है, तो कुछ जनरेशन जाने पड़े, है ना. 3-4 साइंटिस्ट हैव डन स्टडी. एक थेरी आ गई, जैसे डाल्टन का आ गया, उन्होंने पोस्टुलेट्स रखा. उसके बाद थॉमसन जी आ गए, उन्होंने पोस्टुलेट्स रखा, उन्होंने कुछ बोला. देन थॉमसन के बाद रुदरफोर्ड आ गए. सो ऐसे इट वॉज एन सीरीज. वो सीरीज आ गई, एक की सीरीज को दूसरे सीरीज ने कुछ पॉइंट उन्होंने एक्सेप्ट किए, कुछ पॉइंट ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड, एंड उन्होंने उसका प्रूफ दे दिया कि इसमें ये गड़बड़ है. थर्ड साइंटिस्ट टेलिंग कि 70% is correct, but 30% is not explaining my experiment. So he has corrected, and in this way, that's why you have these theories. So you will come to know कि these theories are very very important, and with the help of these theories ऐसे research किया जाता है. And I hope my dear students, you will be, आप भी ऐसे क्यूरियोसिटी से यू विल स्टडी लॉट्स ऑफ थिंग्स इन फ्यूचर. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड का जो मॉडल है. उनके सम पॉइंट्स जैसे एटम न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल न्यूट्रॉन है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड ऑल दैट स्टफ, दैट वर करेक्ट. बट ये पोस्टुलेट जो है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक सोलर सिस्टम. तो ये जो है इट हैज दिस ड्रॉबैक. It is not accepted. According to electromagnetic theory, when any charged particle revolves continuously in a circular path, it emits energy and shortens its path. तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी इज इन फिजिक्स, एंड फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी इज टेलिंग अस कि कोई चार्ज पार्टिकल है एंड वो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो क्या होता है, उसका एनर्जी, उसका जो रिवॉल्व करने का पाथ है वो धीरे 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 शॉर्ट होके वो खत्म हो जाता है. बट एटम्स आर स्टेबल, वो तो कभी खत्म नहीं होते, दे कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो ये पोस्टुलेट फेल्ड टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, रुदरफोर्ड का ये जो लास्ट वाला पोस्टुलेट है, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट रुदरफोर्ड्स का जो पोस्टुलेट्स.